Hello everyone, welcome all of you to the Vedanta Commerce, and this is me Aditya Arya, Master Teacher of Mathematics and Statistics. On this platform, on this channel, I am taking care of class 11 mathematics subjects. Every single topic is discussed in detail with lots of questions, lots of practice and test on every weekend. Apart from mathematics subject, we are also taking care of other core subjects, your accounts, business studies and economics. So if you are new on this platform, it will be really great if you can subscribe to this channel. And we will start a video. We will start this video with a wonderful topic: how to become an economist. कौन होता है economist? What is the process to be become so? कैसे बन सकते हैं? क्या कोई procedure है इसका? What exams we need to give? There are a lot of questions that might be having in your mind. कौन होता है ये? क्या करता है? कैसे जॉब लगेगी? सारी चीजों के बारे में बातें करने वाले हैं हम लोग. We will start talking about this. So hit the like button if you really love to come over here, show your love. Share this video to your friend who is thinking of his or her future as an economist, or might be he or she is a bit confused कि क्या किया जाए. Let's learn about one more career opportunity, career option. जितना आप जान सकते हो, सीख सकते हो, समझ लो इसको. Because once you will choose after 12 करना क्या है, एक बार select कर लिया, the next 3 years, next 5 years, next 7 years, you are going to be in the same field. तो इसलिए ये जो टाइम पीरियड होता है कि व्हाट टू चूज वेयर टू गो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना. चलिए, तो अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है सर मुझे इकोनॉमिस्ट बनना है, दैट मीन्स आई एम कंसिडरिंग यू नो व्हाट एग्जैक्टली इकोनॉमिस्ट डू, क्या करता है, कौन होता है. दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू गाइस. कौन होता है इकोनॉमिस्ट? Who actually is an economist? कौन होता है economist? इसके बारे में बात करेंगे. I want all of you, those who are watching this video right now or maybe later, I want to know, according to you, what do you think, what is an economist? कौन होता है economist? Okay, तो I'm waiting for your answers. Quickly respond. जो भी आपको दिमाग में आता है, मैं भी आपको एक लेमन टर्म में समझाऊंगा. कौन होता है economist? In simple layman term, इकोनॉमिस्ट इज अ डॉक्टर ऑफ द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी की नब्ज पकड़ के बता देगा कि भाई इसको ऊपर लेकर जाना है, ये करना पड़ेगा. डॉक्टर ऑफ एन इकोनॉमी. आपको पता है ना, ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम्स इकोनॉमी ऑफ मेनी कंट्रीज वाज इन नेगेटिव, द जीडीपी ग्रोथ रेट. अब आपको जीडीपी पता होगा, आप कॉमर्स के हो तो आई एम अज्यूमिंग इट, है ना. मोर देन मी यू नो अबाउट इट, क्या होता है जीडीपी. बट इन टर्म्स ग्रोथ की हम बात करें, योर इकोनॉमी was having the negative growth. So all the economist was in the deep, you know, discussion कैसे इसको ऊपर लेकर आए यार. Because if country is having a negative growth of the economy, तो भाई ज्यादा दिन नहीं चलेगा. It cannot survive more than that. It's मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं. मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए, ठीक है. आपका जो पैसा है वो 10% से बढ़ जाता है. 1 लाख रुपए है, आपका पैसा 10% से बढ़ जाता है. So in the year 2020, let's say I've given you 1 lakh rupees. In 2021, it become 1,10,000 rupees. 10% का growth rate मान के चलते हैं. Now your growth rate is decreasing. One of the factor. ग्रोथ रेट इज वन ऑफ द फैक्टर. बहुत सारे फैक्टर्स और होते हैं. इन्फ्लेशन के बारे में बात होती है, लिक्विडिटी मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, रेट्स क्या होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं. बट आई एम जस्ट कंसिडरिंग वन. अब लेकिन अगले साल, next year, your money is not increasing by 10%. It is just increasing by 1%. सिर्फ 1% से अगर बढ़ती है तो क्या होगा? 1% से का मतलब है कुछ, आई थिंक 1100 रुपीज इंक्रीमेंट. इज इट समथिंग to worry about? Because you are having a plan that your income should increase by 10% or nearby it. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, ठीक है. तो अभी इसका हमने क्या बोला, 1%. 1% का मतलब कितना हो गया? जस्ट इंक्रीजिंग बाय 11%. सो इन 2022 you are having total income as 1 lakh
11,100 rupees, just increased by 1,100 rupees. Now your growth has been decreased. अगले साल और डिक्रीज हो जाएगी. अब नेगेटिव में ग्रोथ है, यानी कि अब मान लेते हैं नाउ इन द ईयर 2023 अब आपका पैसा 1,11,100 रुपए नहीं 1,09,000 हो गया. अगले साल 1,07,000 हो गया. इकोनॉमी नेगेटिव में ग्रो कर रही है और कुछ टाइम के बाद ये 1,00,000 से कम भी होगा और एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा. अब आपको किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे, प्लीज समबडी हेल्प. एंड व्हेन यू नीड द हेल्प एज अ कंट्री यू हैव टू फॉलो द कंडीशन. सारी बातें माननी पड़ेंगी, नहीं तो बेटा आहाकार मच जाता है. तो what these economists are doing, these are taking care of every single factor which can cause a situation of panic in the economy. वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए. जैसे आपका डॉक्टर होता है ना कि थोड़ी सी भी दिक्कत हुई you are going to doctor. Why? So that you can treat on the in the right time. तो बस यही है. In short, the one who study analyze data. डेटा किस चीज का? इकोनॉमी का डेटा. व्हाट इज एन इकोनॉमी? अगर मैं सिंपल टर्म से बोलूं, इकोनॉमी का मतलब है ट्रांजेक्शन, कंट्री का ट्रांजेक्शन की हम बात करें, है ना, इंडिविजुअल का ट्रांजेक्शन की बात करें. माय पर्सनल इकोनॉमी, मेरा कैसी आर्थिक स्थिति होती है. तो देश की आर्थिक व्यवस्था को हम जो संभालने वाला होता है दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमी. सो द वन हु शेप द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है. पहला सवाल, विच इज द biggest economy of this world? I want all of you to answer in the comment box. मेरा दूसरा सवाल इसी से related. Which economy in this world is growing most rapidly? Which one is having the highest rate of growth? दूसरा सवाल. और तीसरा सवाल, what is the India's target in the upcoming? एक resolution pass, resolution का मतलब है they have taken a oath kind of, no, together we are having this, we want to achieve this target. तो बताइए आप चैट सेक्शन में लिखकर what is the nearest target of India in the near future, कि हमें इतने ट्रिलियन और इतने बिलियन की इकोनॉमी को टच करना है. या फिर आप मुझे बता सकते हो कि what is the economy and total economy of this country. ठीक है. तो इन तीन सवालों का पहला सवाल which is the biggest economy, and second thing is rapidly growing economy, and third thing is what is the economy state of the India. इंडिया की हालत क्या है इस समय, कितनी बड़ी इकोनॉमी है इंडिया. नाउ सेकंड क्वेश्चन. ओके, वी गॉट टू नो अबाउट कि यार ये काम तो बहुत बड़ा है, छोटा मोटा काम नहीं है. एंड डेफिनेटली इफ यू आर इकोनॉमिस्ट यू आर रियली अ वेरी प्रेस्टिजियस पोजीशन. आप बहुत बढ़िया एक अच्छी पोजीशन पर काम कर रहे होंगे, है ना. पैसा भी होगा, इज्जत भी होगा, दौलत भी होगी, शोहरत भी होगी, सब होगा. लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए यू हैव टू क्रॉस मैनी हर्डल्स, बहुत छोटे छोटे हर्डल्स. वेरी फर्स्ट थिंग इज यू मस्ट बी 12th पास. तो हो जाओगे. आई बिलीव, यू बिलीव, एवरीवन बिलीव्स दैट यू विल बी soon you will be 12th pass in years or 2 years or upcoming years. इसके अलावा you have to be a graduate from bachelors of economics, और कई बार इसको हम बोलते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स. तो आपको आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की फील्ड में. ठीक है. नाउ हियर इट डजंट मैटर वेदर गुड कॉलेज बैड कॉलेज, लेकिन फिर भी ultimate aim of writing this statement from a good college is when you pass out from the college, when you complete your 3-year time spent in this graduation period, you must acquire desired skills and the knowledge. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 साल के बाद आप पूछ रहे हो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई बताओ ये क्या होता है, एंड यू विल बी लाइक जीरो. You must be, you must know every single thing what has been taught in the 3 years of the graduation bachelor's of degree in the economics. अभी नहीं बनोगे, अभी एक और चीज बचेगी. इसके बाद आपने करना पड़ेगा मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन. पोस्ट ग्रेजुएशन यू हैव टू इन्वेस्ट 2 more years फॉर पीजी. इकोनॉमिक्स की फील्ड में ही करना है. आप कुछ भी कर सकते हो, एम कॉम कर सकते हो, मास्टर इन कॉमर्स इन द इकोनॉमिक्स फील्ड, एम फिल भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, लेकिन आपको जो भी करना है इकोनॉमिक्स की फील्ड में ही करना है. ओके. इसके अलावा एज लिमिट
You must be between 21 to 30. Generally, the one who is applying for this particular post will be somewhere around of 25 or 26. 24 से 26 साल की उम्र के आसपास का ही होता है जनरली. You will be graduated by 20, and if you will immediately start your post graduation, 2 more years. तो कुछ लोग 2-3 साल के बाद स्टार्ट करते हैं. Considering that, technically your age will be 24 to 27 on an average. इसी उम्र में आप अप्लाई कर देना. ठीक है, तो ये तो हो गया. अब इसके अलावा दिस इज अ लिस्ट. आई एम नॉट गोइंग टू कॉल नेम ऑफ एवरी सिंगल कॉलेज. ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. दिस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज कॉलेज फ्रॉम वेयर which you can target, which you can target for your graduation and post graduation. उसके लिए आप टारगेट कर सकते हो. इससे कि द वेरी फेमस श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो हमें पता है सबको, दिल्ली के अंदर. स्टीफन कॉलेज, इसके अलावा लॉयला कॉलेज, मैंने नाम सुना है. प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, शांति निकेतन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बेंगलुरु, लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन. तो ये सारे कॉलेज हैं जो आप टारगेट कर सकते हो. अच्छे कॉलेज हैं. व्हेन वी से अ गुड कॉलेज, वी मीन दैट द academic, the whole institute will take care that you are graduating with sufficient amount of skills and the knowledge whichever is required. ठीक है, तो वो ध्यान रखा जाएगा उस चीज का. और भी है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, SIES कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जेवियर्स कॉलेज, नारसी मोहनजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स. नारसी मोहनजी का आपका मैनेजमेंट का भी होता है. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU वाराणसी. तो ये सारे कॉलेज है. आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट. और मैंने कुछ एग्जाम्स भी ऐड किए हैं अगर आपको ग्रेजुएशन के लिए कुछ चाहिए होता है तो. DUZ हो गया, NPET एक टेस्ट हो गया, SET हो गया, CUET हो गया. मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा. आई हैव मेड अ वीडियो ऑन DUZ. इसके ऊपर मैंने बात की हुई है पहले भी. CUET के ऊपर एक वीडियो बना देंगे, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. ठीक है, IP, CET, DU, DSC सारे एंट्रेंस टेस्ट है. तो आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल. ये इन सारे कॉलेज के अंदर आपका ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दैट यू कैन गो फॉर. ठीक है, अच्छा एक ध्यान से सुनना इस बात को. नाउ सिंस वी आर टॉकिंग दैट वी वांटेड टू डू आवर ग्रेजुएशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट मींस दैट क्लियरली स्टेट्स that you must have mathematics in class 11 and class 12. You cannot run away from mathematics. आप नहीं भाग सकते. आपके पास होना चाहिए 11th-12th में. ज्यादातर कॉलेज में रिक्वायरमेंट इसकी रहेगी. इसके अलावा in near future you will be dealing with the statistics, graphs, curves, calculus. You will be dealing with the probability. इन सारे कॉन्सेप्ट से आप डील करते रहोगे हमेशा. स्ट्रेट लाइन चैप्टर ये बार बार आएगा. स्लोप क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, कर्व्स के बारे में. तो इसका आपको आइडिया रहना चाहिए. ओके, सो यू शुड नॉट बी too good in mathematics, but yes, your basics must be very clear in mathematics. तो वो ध्यान रखें, because ultimately you have to analyze and read data, है ना. क्योंकि अगर आप डेटा को समझ पाओगे, रीड कर पाओगे, तभी आप एक्शन ले पाओगे. You can take a very good action if you can understand the data. अगर आप वो नहीं समझ पा रहे, if you are not good at it, तो फिर आप एक अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते हो. अब यहाँ पर इकोनॉमिस्ट भी बहुत तरीके के होते हैं. One is research economist. जैसा नाम बता रहा है, research. So you will be doing research on different models. आप अलग अलग तरह के मॉडल्स पर रिसर्च करोगे. जैसे कि एग्जांपल हमने लिया है डिमांड और सप्लाई चेन के ऊपर. You will see how exactly it work in different situations. तो आप different situations में इसको आप टेस्ट करोगे. You will do your research in this. क्या क्या काम आता है? Statistics काम आता है, obviously mathematics and principle of economics to do so. ओके, तो यहाँ आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो. इन शॉर्ट, यू आर वर्किंग एज एन इकोनॉमिस्ट इन R&D डिपार्टमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपको यहाँ पर डीप स्टडी और आपका नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. सिंस यू आर इन द R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यू विल डू रिसर्च एंड यू विल कम अप विद सम वंडरफुल टूल एंड थ्योरी. इसके बाद इंडस्ट्रियल इकोनॉमिस्ट, द वन हु इज, सी इकोनॉमिस्ट इज अ डॉक्टर ऑफ द इकोनॉमी, but economy can be of the country, can be of the state, can be of the individual or a company or organization. तो अब इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स एक इंडस्ट्री, एक कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमी पर काम करता है टू इम्प्रूव इट्स ट्रांजेक्शंस. कंपनी प्रॉफिट में बढ़े, क्या दिक्कत हो रही है, व्हाट इज अ प्रॉब्लम दैट कंपनी इज फेसिंग,
मान लीजिए कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जिसकी डिमांड ही नहीं है, बट वी आर कीपिंग द सप्लाई, तो इकोनॉमिक्स वाला ये बताएगा कि भाई इस चीज की डिमांड नहीं, देयर इज नो डिमांड इन द मार्केट, व्हाई वी आर डूइंग इट. At least economics can figure it out that there is some disturbance in the supply and demand chain. और भी बहुत सारे फैक्टर्स जैसे मैंने आपको बताया. ठीक है, तो इन सारे the overall view is you are working as an economist in a organization or a company to boost its total out profit. इसके अलावा फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स क्या होता है? यू विल बी वर्किंग ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी कंट्री के लिए, अब मॉनेटरी पॉलिसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात नहीं कर रहे हम लोग, कंट्री के लिए बात कर रहे हैं. फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट, आप डिसाइड करोगे कंपनी में रेट क्या होंगी, कितना लिक्विडिटी मार्केट में होना चाहिए. मॉनेटरी पॉलिसी, पॉलिसीज रिगार्डिंग मनी. इन शॉर्ट, देखो हैवी हैवी टर्म है तो आपको मैंने सिंपल शब्दों में समझा दिया. मॉनेटरी इज रिलेवेंट टू द मनी, है ना. तो मनी से रिलेटेड आपका रेट कितना होना चाहिए, आपका मार्केट में कितना लिक्विड होना चाहिए, कैसे उसको कंट्रोल करना है, पैसा कितना ज्यादा है उसको खींचना है, जो भी इसके लिए पॉलिसीज बनेगी, वट एवर द एक्शंस नीड टू बी टेकन, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स विल टेल टू द कंसर्न पर्सन कि हमें ये डिसीजन लेना है. तो इकोनॉमिक्स बताता है ये करना चाहिए. करने वाला कौन है बेटा? नेता लोग, वही करेंगे. बट उनको गाइडेंस कौन करता है? उनको ये इकोनॉमिक्स गाइड करते हैं. क्लियर? और बहुत सारी और चीजें, जैसे कि अब कोरोना का पीरियड चल रहा था तो प्रिडिक्ट करना हो गया कि नाउ इकोनॉमी इज गोइंग टू बी इन अ नेगेटिव ग्रोथ. तो उस केस में हमें कुछ करना चाहिए, तो वी कम आउट विद समथिंग ग्रेट, आत्मनिर्भर भारत. तो लाइक मेक इन इंडिया प्लान. तो मेक इन इंडिया वाज वन ऑफ द स्टेप्स, यू कैन सी दैट वाज अ पार्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कि हमें खुद पर एक बूस्ट होना है. तो ये सब डिसीजंस जो लेते हैं, दे आर टेकन बाय द मिनिस्टर्स, बट अल्टीमेटली मिनिस्टर्स आर गाइडेड बाय फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट. ठीक है. इसके अलावा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसका काम भी अप्रोक्सीमेटली इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के जैसा ही है. अप्रोक्सीमेटली जस्ट अ पोस्ट है. ओके. इसके अलावा लेबर इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स का मतलब जो लेबर्स की उसमें काम करेगा, वेज के ऊपर काम करेगा कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन कितना वेज होना चाहिए, व्हाट इज द लाइक बेसिक कितना रेशियो होना चाहिए, कितनी लेबर होनी चाहिए, लेबर का वेज कितना होना चाहिए, मार्केट का. देखो हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, मैं आपको एक सिंपल आइडिया दे रहा हूँ. द वन हु इज डीलिंग विद द लेबर इज द लेबर इकोनॉमिक्स, एज सिंपल एज दैट, है ना. ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि काम क्या होगा, क्योंकि मैंने भी काम नहीं किया है और आपने भी नहीं किया है ना. तो अल्टीमेट पॉइंट क्या है कि वी शुड नो द बेसिक्स. बेसिक्स क्या होते हैं? क्लियर? तो जैसे हमने बोला आपको लेबर कितनी होनी चाहिए, उसकी डिमांड और सप्लाई को मैनेज करता है फॉर द एम्प्लॉयर और द ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर है बात? तो कितना काम है मेरे पास. अभी क्या होता है, कई बार काम बहुत सारा है, एक को ही डाल दिया और वही किए जा रहा है काम, क्या होगा उसके बाद? if one person is having the load of everything, कंपनी से छोड़ के चला जाएगा. तो लेबर इकोनॉमिक्स विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि उनकी पॉलिसीज क्या होगी, कितने लोग होने चाहिए, क्या इनका वेज होना चाहिए, इनका वेलफेयर के बारे में, इनकी पॉलिसीज के बारे में, सब इस पे काम होगा. अच्छा, ये तो हो गए आपके कुछ ये वो वाली जॉब्स हैं, प्राइवेट जॉब्स में आप बोल सकते हो. ऑर्गेनाइजेशनल जॉब्स, अल्टीमेटली आप किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये काम करने वाले हो ज्यादातर इस पे. अब गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम होता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है. अल्टीमेटली क्राइटेरिया इज एग्जैक्टली सेम, वही आपको पीजी और वो सब करना पड़ेगा. कैंडिडेट्स नीड्स टू डू पोस्ट ग्रेजुएशन टू अपीयर दिस एग्जामिनेशन. यूपीएससी करवाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. तो पेपर अच्छा ही होगा, आप मान के चलिए. क्लियर? तो यू नीड टू हैव अ वेरी गुड यू शुड प्रिपेयर इट वेल. ऐसे आप उठकर नहीं जाओगे, आप उसको अच्छे से तैयार करोगे. और यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो यहाँ से निकल कर जाएंगे. तो आप समझिए आपकी वैल्यू क्या है. and you give this examination, so you do your graduation, you do your 12th, then graduation, then post graduation, and then you sit for this examination. यानी कि आपके पास थोड़ा सोचना इसके बारे में. Let's suppose now you know about this examination, IES, Indian Economic Services. Now, from the very first day of your graduation and till the last day of your post graduation, जब आप eligible हो जाओगे, you are having
5 years टाइम, आपको नहीं लगता 5 साल with full on focus, with full on dedication, if you will target this examination, one day you will be an economist. सोच के देखना आप. It's just the one who is failing has not given the 100%. आपने उतनी मेहनत नहीं की होगी. तो अब या आपके पास दो तरीके हैं, या तो 5 साल के बाद सोचना शुरू करेंगे and then everyone will be at the same level, or you are 5 years ahead of the everyone. यानी कि कुछ लोग यहाँ तैयारी शुरू करते हैं, आपने 5 साल पहले ही शुरू कर दी. बेटा आपके कॉन्सेप्ट्स, आपको आंसर कैसे लिखने हैं, कैसे आपको पेपर फोड़ना है, सब आपको 5 साल के अंदर मालूम चल जाएगा अच्छे से. यू कैन डू दिस. तो अगर आप चाहते हो इस एग्जाम को निकालना, इफ यू वांट टू बी द इंडियन, इफ यू वांट टू द इकोनॉमिस्ट इन द इंडियन गवर्नमेंट, तो आप इस एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दो. और बाकी इस एग्जाम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. व्हाट एग्जैक्टली द पर्सन इकोनॉमिस्ट डू द वर्क एज एन इन द इंडियन गवर्नमेंट, क्या क्या काम होते हैं, कौन कौन से फेमस इकोनॉमिस्ट रहे हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे. एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या होता है, सब चीज के अंदर हम देखेंगे फिर. ठीक है. और कहाँ कहाँ पर, अच्छा अब ये भी रिक्रूटर्स हैं, टॉप रिक्रूटर्स हायरिंग इकोनॉमिस्ट, आरबीआई हो गई, है ना, और इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स हो गई, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस तो मैंने आपको बता ही दिया है, सेबी, एलआईसी, इकोनॉमिक टाइम्स. ऑलमोस्ट एवरी बिग ऑर्गेनाइजेशन डू नीड्स एन इकोनॉमिस्ट टू टेक केयर ऑफ इट्स इकोनॉमी. So you will now, and now you have, now you know what exactly is now economist. और अब आप डिसाइड करोगे कि आप बनना चाहते हो या नहीं. और बनना चाहते हो तो चैट सेक्शन में लिखेंगे कि आई वांटेड टू बी अ फ्यूचर इकोनॉमिस्ट, वेयर दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड. कहाँ? इन अ प्राइवेट सेक्टर, इन द इंडियन गवर्नमेंट. आई वांट टू क्लियर आईईएस. ये सब बातें हम लोग लिखेंगे, बिकॉज व्हेन यू राइट दिस डाउन, आपको दिमाग में रहेगा यार मैंने कभी लिखा था कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं और आई वांट टू बी द इकोनॉमिस्ट इन अ प्राइवेट सेक्टर, जो भी कंपनी हो, मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ. जो आप लिखोगे ना, दैट पर्टिकुलर थिंग विल कीप रिकॉलिंग यू. आपको बार बार याद आएगा, जाने अनजाने में जब भी आप इस चीज से टकराओगे आपको याद आएगा. वंस यू हैव प्रॉमिस्ड टू योरसेल्फ, आई वांटेड टू बी एन इकोनॉमिस्ट. चलिए तैयारी शुरू करते हैं इस बात की. I wish you all best of luck for your future. Now, a very wonderful quote. Some people dream of success while others wake up and work. Now it's your time. अगर आपको मालूम चल गया है क्या करना है तो उठो, जाओ और लग पड़ो बेटा. This is all guys from my side, but still there is a lot more to know about this economist field. So if you are having a doubt, if you are having doubt, you can write down in the chat box. Okay, if you're having doubts, you can write down in the chat box and we will have a discussion. I will be happy to reply all your questions. Stay tuned. I do come live on Wednesday, Thursday and Saturday at 3:30 p.m. and on Monday, Tuesday and on Friday at 6 p.m. at the same time. And guys, we are having one more a very good thing for you, weekend mock test mania. That means every week we are having a discussion of lots of theory and concepts and questions, and at the end of the every week, as I said, we do conduct a test. जो पढ़ा है हमने YouTube पर उसका हम टेस्ट लेंगे. We will check you how much you have improved and you will check also. So we will give you a report card for this. We will give you the report card for this. Okay. Now, if you wanted to enroll for 11th and 12th, the very first question is, should we enroll or not? क्या हमें enroll करना ही चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो देखो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा what kind of journey do we actually want? किस तरह की जर्नी मुझे चाहिए? Okay, so there are two ways. There are two ways. One is start your journey, कैसे भी शुरू करो और पहुंच जाएंगे. दूसरी जर्नी where people will take care of you every single step. आप सोचो एक बार इस चीज को, है ना. एक अपना नॉर्मल बस से सफर करना और अपना एक बढ़िया फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन या फ्लाइट में ट्रेवल करना, दोनों में फर्क होता है. पहुंचेंगे दोनों के अंदर. तो ये आपको डिसाइड करना है. एनरोलमेंट गिव यू these services. Enrollment basically is a you can say is a program which will take care of you. तो अगर आप चाहते हो
that you wanted a team matters, a team of experts who wanted to take care, you should enroll. और आपको लगता है कि नहीं सर अपना बढ़िया काम चल रहा है बस यूट्यूब पे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. ठीक है. इसके अलावा आपको एनरोलमेंट में क्या मिलेगा, व्हाट काइंड ऑफ टेकन केयर विल बी देयर. देखिए, द वेरी फर्स्ट थिंग इज इंटरेक्शन बिटवीन द फैकल्टी एंड यू एंड मी. आपके और मेरे बीच में इंटरेक्शन. अब ये इंटरेक्शन वन वे है यहाँ पर. ओनली आई एम टॉकिंग सिंस लास्ट आई थिंक सम 30 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली. पिछले 3 मिनट से मैं ही बोल रहा हूँ, 30 मिनट से. But I literally wanted to hear you. अगर मैं आपसे पूछूं what is your doubts, I'm very sure to write down the integration of x square plus sin x minus 3 to the power x dx multiply this and that बहुत मुश्किल हो जाएगी यार. But on the platform, on the enrollment program, we will give you this feature that instead of writing, we can communicate through audio to audio. मैं तो वीडियो पे रहूंगा यार आपके लिए, ऑडियो टू ऑडियो. मतलब मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आप अपना सवाल रीड कर सकते हो. That's the very first thing. Second thing is sometimes we have done a question correctly, but कई बार होता है ना कि यार I do not know, I am not able to find out my mistake. I have done exactly with the correct way. So in that case, you can open your video, you can show your work to your master teachers who will check. इसके अलावा अगर आपको लगता है कि यार आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु इज नॉट एबल टू आस्क द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, नीड नॉट टू वरी. वी आर प्रोवाइडिंग यू वन टू वन इंटरेक्शन in the same class. One is master teacher, one is class teacher. Every student will be having one personal master teacher. हर कोई पर्सनली इंटरेक्ट कर सकता है, अपने डाउट सॉल्व कर सकता है. तो यू विल नॉट लीव द क्लास विद सम डाउट्स, है ना. तीसरी चीज, मान लीजिए क्लास के बाद क्या. So after the class, now if you're having a problem, if you're having a doubts, there must be someone who can take care of your doubts and your queries, or either wait for 24 hours. So it's better to solve your queries immediately. इसके अलावा conceptual clarities, questions में भी ऐसा नहीं है कि I will say do 100 questions of this book. No, we must टारगेट ourselves for the specific and relevant question for the examination. हर क्वेश्चन को करने बैठेंगे टाइम नहीं मिलेगा. पढ़ना क्लास है या आपका एनरोलमेंट है, इसका भी होमवर्क है, इसकी क्लासेस हैं, इसके क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस असाइनमेंट है, कितना करोगे. यू आर हैविंग अ लिमिटेड टाइम, सो यू मस्ट डू द लिमिटेड क्वेश्चन व्हिच आर रियली गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू. असाइनमेंट्स, क्वेश्चन, सब कुछ. इसके अलावा डिसिप्लिन in every perspective and to cover the syllabus in time with the pace which is suitable for you and a multiple times revision. इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं which I really wanted to show you on live over here. तो उसके लिए we will join the next class. अगली क्लास में आप आइए, मैं आपको लिंक खोलकर पूरा लेक्चर आपको दिखाऊंगा कि कैसे लेक्चर कंडक्ट होता है. What are the features which is really helpful for you. ठीक है, great. So guys, you can enroll in Vedantu's live and interactive course where we will cover the complete theory, all the questions, and which will give you an improvement in your preparation. Boost dega. So both you are having two kinds of courses, Vedantu Pro Lite, Vedantu Pro Classic. Now Vedant live interactive online class, same for both. Test series for both. This is something important. Test series means frequently you will be having the test and its analysis report to improve on various parameters. इसके अलावा assignments after every lecture and notes will be provided to you. So when you are joining the class, need not to worry to write down anything because we are providing hand written notes by subject matter experts. Doubt solving during the class in dual form, and the last one is doubt solving on mobile application. So to take care of you even after the class ends. Now, if you are one of those कि सर अपने पास तो बढ़िया ग्रुप है, I can take care of my doubts, I have many friends who can solve my doubts, great. Then that's really great, you should go for Vedantu Pro Lite. That will be really great plan for you. लेकिन अगर आपके पास ऐसा ग्रुप नहीं है तो आप जा सकते हो वेदांतु प्रो क्लासिक पर, क्योंकि यहां पर आपको पता है ये मास्टर टीचर ही मेरा डाउट सॉल्व करेंगे. यू डू नॉट वेस्ट टू टाइम, यू डू नॉट नीड टू वेस्ट टाइम सेंडिंग योर क्वेश्चन टू दिस फ्रेंड एंड दिस एंड दैट. ग्रुप स्टडी अच्छा है लेकिन टाइम को बचाकर भी चलना है, क्योंकि वैसा आपको बोला
टाइम बड़ा कम है आप लोगों के पास, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन अ डे, तो टाइम सेव बहुत होगा। इसके अलावा अब प्राइसिंग की बात करते हैं। नाउ वेदांतु प्रो लाइट इज ऑफ रुपीज 37,599, बट आफ्टर हैविंग अ डिस्काउंट एंड अप्लाइंग द कोड ADAPRO आपको यही पैकेज मिलेगा 17,099, अप्रोक्सीमेटली 20,500 का ऑफ लगा है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा प्लान वेदांतु प्रो क्लासिक इज ऑफ रुपीज 43,999 आफ्टर अप्लाइंग द डिस्काउंट एंड अप्लाइंग द कोड ADAPRO, ओवरऑल डिस्काउंट बिकम्स 27,899 फाइनल प्राइस। अब अगर थोड़ा सा और इसमें देखते हैं, this will cost you somewhere around 15 rupees Vedantu Pro Lite, 15 rupees per day per subject, and Vedantu Pro Classic somewhere around 23 rupees per day per subject. You are paying extra 8 rupees for your doubt solving even after the class. So guys, link for the subscription is given in the description box. You will check out the link. In the next class, join the session and I will be showing you how exactly you can reach to the enrollment page. और बाकी सारी चीजें कि कैसे क्लास कंडक्ट होती हैं, सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। Make sure to note down the code ADAPRO. This is all for the day. I hope you really love this video. So I will be really thankful for you if you hit the like button, share करेंगे अपने दोस्तों के साथ, subscribe if you are new on this platform. आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, till then take care, bye bye, see you all, good night in the next class.